Assalamu alaikum everyone. I'm Nimra. And I'm Sarah. We start with the greatest name of Almighty Allah, most gracious and merciful. Welcome to the Python Bootcamp 2020. The following universities are on board with us. We have Syed Atiq, DSc Lead from DHS Suffolk University, Mohammad Huzefa Shehbaz from Sir Syed University of Engineering and Technology, Asharif Ahmed from Sindh Madrasatul Islam, Raheel Siddiqui from Osman Institute of Technology, Mohammad Asadullah from NET University of Engineering and Technology, Varisha Rahman from Institute of Business Administration, Mohammad Bilal Khan from PAF Kite, Mohammad Osama Rajput from FAS, Nimra Javed from Habib University, Syed On Mohammed from Virtual University. I would like to call our instructor for today, Tarun and Bahawal. So over to you, Tarun. Thanks a lot, Sarah. So let's get started, guys. ठीक है, तो last week bootcamp covered how do you work with Beautiful Soup और APIs वगैरह को और HTML वगैरह को डाउनलोड करके उससे इंटरेक्ट कैसे करते हैं, right? So this week we'll cover Selenium. अच्छा, Selenium is a really powerful tool as compared to what we actually did with Beautiful Soup and Request. Instead of just interacting and downloading the HTML code, we can also enter text into fields, click on buttons, submitting forms, scroll, copying content वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं using this tool. ऑनलाइन क्लासेस ऑटोमेट कर सकते हैं. देखेंगे we'll see, look into that as well. ठीक है, तो hopefully तुम लोगों ने वीडियो देख ली होगी. How do you जो टीजर वीडियोस मैंने अपलोड करी थी, राइट? देख के मजा आया. I was replying to messages वगैरह. So that is something we'll be doing as well. और जब तक ऑनलाइन क्लासेस को ऑटोमेट करने की बात आती है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे hopefully, but that's something I leave up to you guys after I am done with today's session. Yeah, this week's sessions overall. चले, ठीक है. तो Selenium का before we start एक एग्जांपल मैं दूं या स्टार्ट कर लेते हैं बाद में एंड ऑफ द क्लास में तुम लोगों को एग्जांपल दूंगा एक, ठीक है? Another example. So let's get started with installing Selenium WebDriver. हमें pip का पता है, ठीक है? You guys just go ahead और अपने पास pip से Selenium इंस्टॉल करने, ठीक है? अब Selenium इंस्टॉल करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए. नंबर वन, दैट इज द लाइब्रेरी इटसेल्फ, जिसके थ्रू हम Selenium WebDriver से इंटरेक्ट करेंगे. एंड अनदर थिंग इज द बाइनरी फाइल इटसेल्फ, जिसको ड्राइवर फाइल बोलते हैं. अब ड्राइवर फाइल फॉर फायरफॉक्स डिफरेंट होती है एंड फॉर Chrome different होती है, and for Internet Explorer the one browser we do not talk about उसके लिए different होती है, right? So let's go ahead and install the first part, that is the Selenium library for Python. And उसके लिए मैं अपना terminal खोलूँगा, ठीक है? तो we install with pip install. अच्छा, आपको 3 लिखना again ज़रूरी नहीं है, just pip install Selenium. एंड थोड़ा आई गेस थोड़ा लंबा सा इंस्टॉलेशन होगी आपके पास, बट जस्ट गेट इट ओवर विथ. सब इंस्टॉल कर लें, फिर 3 इंस्टॉल Selenium, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. सही माजिद, बिल्कुल जो बात है. ओनली यूज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज डाउनलोड. अब माइक्रोसॉफ्ट एज भी आ गया, सो वी यूज एज टू इंस्टॉल क्रोम नाउ. अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट, दोनों माइक्रोसॉफ्ट एज एंड गूगल क्रोम दोनों एक ही उस पे इंजन पे रन हुए हैं, दैट्स कॉल्ड क्रोमियम, ठीक है? एंड क्रोमियम दोनों को रन करा है. इवन देन आप क्रोमियम यूज़ करके क्रोम इंस्टॉल करो, दैट एक्सप्लेन्स आप एक ही इंजन यूज़ करके भी कितना बेहतर हो सकते हो. यान यू हैव टू pip3 इंस्टॉल Selenium. उसके बाद आपका वो ये आपके पास अगर इंस्टॉल्ड होगा भी तो फिर से इंस्टॉल नहीं होगा, बता देगा खुद को आप इंस्टॉल्ड है, ठीक है? Selenium इंस्टॉल हो गया. चले अब लेट्स गेट डाउन टू द बाइनरी फाइल. अच्छा, अब बाइनरी फाइल के लिए, ठीक है, तो बाइनरी फाइल के लिए आपके पास अब आई विल बी गोइंग ओवर क्रोम ओनली फॉर दिस सेशन. अगर आपके पास डिफरेंट कोई ब्राउज़र है तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल. पर्सनली मैं प्रेफर क्रोम इसलिए करता हूँ कि फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ये पता चला है कि क्रोम वर्क्स मच फास्टर देन फायरफॉक्स. और एक क्लाइंट की स्क्रिप्ट थी विच टुक अराउंड 2 आवर्स ऑन फायरफॉक्स, और वही चीज़ 1 घंटे में क्रोम पे हो रही थी. तो यस, क्रोम इज़ द प्रेफर्ड टूल, या एटलीस्ट क्रोमियम टाइप का कोई ब्राउज़र यूज़ कर लें, जैसे कि
ब्रेव हो गया या कुछ भी, ठीक है। मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है फेसबुक पे एंड यू कैन लुक इनटू इट नाउ। हाँ अनस कोई नहीं होता, ओनली दोज जिनको पता लगता है कि क्या करना है, दोज हु स्टे और द वंस हु स्टे। अब काफ़ी लोग यही जाके बोलेंगे यार कि तरुण भाई आपकी पाइथन बूटकैम्प से कुछ पता चला है। दीज लास्ट 2 वीक्स आर द इम्पोर्टेंट सेशन, रियली इम्पोर्टेंट वीक्स। वीक 2 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था, वीक 1 तो ऑफ कोर्स दोज वर द स्टार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट था ही था। Week 2 was first application we went through, Beautiful Soup or request. This week will be Selenium or Selenium. I can guarantee you one thing guys कि जैसे ही ये ख़त्म हो जाता है ना this week, you can just start applying for SQ engineer jobs क्योंकि Selenium is a tool they use over there. It doesn't have 64 bit. हाँ Assam, no worries, 32 bit से ही काम चला लो आप, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। यू जस्ट गो ओवर देयर, सब लिंक पे जाएं क्योंकि मेरे पास वो था, क्रोम था, बट ये बंद नहीं करते, आखिर में मैं देखूंगा इसको। इसको क्लोज्ड एंड ठीक है। आप यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आपके पास 3 या 4 वर्जन आएंगे आपके पास, राइट। तो वेरीफाई आप कौन सा क्रोम का वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, यू जस्ट गो ओवर देयर, एक न्यू टैब खोलें, क्रोम डैश डैश वर्जन, ठीक है। इफ़ यू गो टू दिस वेबसाइट, नॉट वेबसाइट, URL, वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि what kind of Chrome version you are using. For example मैं 85 यूज़ कर रहा हूँ, राइट, 85.0। और तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड आई विल फाइंड माय वर्जन। अब अपेरेंटली 85 इनके पास करंट रिलीज में है नहीं, ठीक है। सो आई कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड फाइंड माय अवेलेबल वो। अच्छा मैं क्रोम खुद अपडेट नहीं कर रहा, लिनक्स में कुछ इश्यूज आ रहे हैं नए वाले वर्जन में, सो आई एम नॉट इंस्टॉलिंग द लेटेस्ट अपडेट, सो जस्ट इंस्टॉल द बाइनरी। अब क्योंकि मेरे पास लिनक्स है तो आई विल बी यूजिंग द लिनक्स जिप। आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ 32 Win32 वाले इंस्टॉल करेंगे। तो यू जस्ट क्लिक ऑन द फाइल और वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। सब इंस्टॉल कर लें, फिर डाउनलोड कर लें, फिर मुझे बताएं, आई विल जस्ट शो यू क्विकली कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर वेयर डू हैव टू पुट इट, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वंस यू डाउनलोड द बाइनरी फाइल, अब बाइनरी फाइल वाई इज रिक्वायर्ड, ये पॉसिबल नहीं है सेलेनियम के लिए कि जो आपके करंट इंस्टॉलेशन ऑफ क्रोम है उसको यूज़ करके आप इंटरेक्शन वगैरह कर सकें, राइट। सो यू हैव टू डाउनलोड द बाइनरी फाइल। अब बाइनरी फाइल आपको इस जगह पे रखनी है जहाँ पे पाइथन को मिल सके वो, राइट। तो देयर आर 2 ways टू डू गो अबाउट दिस। आइदर आप ये जो फाइल है ना, extract the zip, not the exes, extract the zip and copy the extract the zip to .exe to ये पाइथन पार्ट। अच्छा तो आपको या तो ये जो बाइनरी फाइल है आपको अपने पाइथन के पाथ पे रखनी होगी, दैट इज कि फॉर मेरे लिए ये था /user/bin। आप लोगों के लिए ऐप डेटा समथिंग जो हमने फर्स्ट उसमें डिस्कस किया था लेक्चर में वो होगा। लेट मी जस्ट क्विकली ओवर गो कि वो क्या था। ओके सो दिस विल बी योर पाथ, python /python 39, ठीक है। दिस विल बी द पाथ जो जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल्ड है। यू जस्ट हैव टू पुट योर बाइनरी फाइल जो कि ये वाली होगी, यू कैन सी दिस बाइनरी फाइल, ये इसको वहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। अब चूंकि मेरे पास लिनक्स है तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट पाथ है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यू कैन कंफर्म कि आपका पाइथन का पाथ कहाँ है यूजिंग वेयर, ठीक है। वेयर पाइथन या विच पाइथन दोनों काम करता है। अब पाइथन सॉरी नहीं, नॉट विच पाइथन, वेयर पाइथन। तो वेयर पाइथन मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे /user/bin/python, राइट। तो मैं क्या करूँगा, XTG ओपन या मैन्युअली आप यहाँ पे जा सकते हैं, user/bin में जाके वहाँ पे रख दूंगा मैं अपना। तो दैट इज होम, नहीं सॉरी, फाइल सिस्टम यूज़र बिन। तो यहाँ पे मेरा क्रोम ड्राइवर आपको पहले ही मिलेगा क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया था। ड्राइव, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी होगा क्रोम
This, ठीक है। आपको यहाँ पे मतलब अगर लिनक्स में है तो आपको ऑफ कोर्स यहाँ पे खुद रखना होगा, या विंडोज़ में जो मैंने पाथ पेस्ट किया फेसबुक के आपको वहाँ पे जाके रखना होगा। वंस एवरीवन इज डन विद इट मुझे बता दें जल्दी जल्दी। अनुष्का हो गया, वेरी नाइस। पाथ कैसे पता चलेगा? अयान, आपको फर्स्ट सेशन अप्लाई करना होता था, फर्स्ट सेशन अटेंड करना था आपको, बट इन एनी केस आप विच पाइथन करेंगे, CMD में जाके, सॉरी वेयर पाइथन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रखा हुआ है पाइथन। फॉर मी इट्स इन यूजर स्लैश बिन पाइथन, तो मैं यूजर स्लैश बिन में रख दूंगा ताकि पाइथन को वो चीज़ मिल जाए। अदरवाइज नहीं हो रहा अभी तो अभी के लिए छोड़ दें, जस्ट कॉपी द फाइल और अपने किसी एक फोल्डर में रखते हैं जहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखेंगे। फिर वो भी काम दिखा देता हूँ। अनस स्क्रिप्ट्स में नहीं रखना आपको, पाइथन 39 मतलब python.exe फाइल आपको जहाँ पे दिखेगी ना वहाँ पे ही रख दें उसके साथ ही, मतलब एक फोल्डर आप स्लैश स्क्रिप्ट्स के अंदर नहीं रखें, पाइथन 39 के अंदर ही रख दें। वेयर इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अयान पाइथन टाइप, ये जो मैंने पाथ ऊपर पेस्ट किया है वहाँ पे जाके देखो कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सी स्लैश यूजर स्लैश, अब तुम्हारा अपना नाम होगा यूजर का जो भी तुमने रखा होगा प्रोफाइल का, स्लैश ऐप डेटा स्लैश लोकल एंड ऑल दैट, ये ट्राई करो। हाँ शाब, अपना जो एक्सप्लोरर है उसको या तो राइट क्लिक करके ओपन एज रूट करो, ठीक है, या तो अनजिप करके अनजिप की कमांड यूज़ करो। नहीं हो रहा अभी के लिए तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। आई शो यू गाइस एन अल्टरनेटिव वे टू डू इट, ठीक है। अभी के लिए एक फोल्डर बना दो, उस फोल्डर में जाके क्रोम ड्राइवर यूज रख दो। मैं तुम लोगों को ये भी करके दिखा देता हूँ, नो वरीज अबाउट दैट, ठीक है। अब काम करते हैं, लेट्स गो टू होम तरुण CTSU Twitter Performance Python Bootcamp वीक 4 नहीं वीक 3 डे 1। और यहाँ पे मैं एक जो अपना डाउनलोड किया था मैंने क्रोम ड्राइवर, वो रख देता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस कि ये कैसे हो सकता है विदाउट यूजिंग विदाउट पुटिंग इट इन योर पाइथन पाथ। आई एम सरप्राइज यार, तुम लोगों अभी भी पाइथन पाथ में मसला हो रहा है यार, क्या करोगे आगे जाके? I discussed this in first week sessions बार बार। हाँ सम, मैं इफ यू गाइस वांट बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस सेशन मैं तुम लोगों को कुछ सेशन वो दिखा दूंगा। जस्ट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, माय फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर वाज फॉर सेलेनियम। सेलेनियम की एक स्क्रिप्ट बनाई थी मैंने, दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर ऑन फाइवर, $25 का था। बोल रहा हूँ यार, माय होल फाइवर प्रोफाइल इज फिल्ड विद स्क्रैपिंग इन सेलेनियम। इवन अपवर्क एट टाइम्स, लेकिन अपवर्क में कुछ ज़्यादा हेवी ड्यूटी काम था इसके अलावा भी। बट यस, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ओरिजिनली। लेट्स गेट स्टार्टेड, होपफुली सबका हो गया होगा। आई स्टार्ट नाउ, ठीक है। अगर तुम लोगों को अभी भी पाइथन पाथ नहीं मिला तो जस्ट क्रिएट अ फोल्डर लाइक आई हैव डन हियर, और वहाँ पे क्रोम ड्राइवर एक्जी या क्रोम ड्राइवर रख दो अपना, इफ यू आर इन लिनक्स, ठीक है। बस उस फोल्डर में रख दो फॉर नाउ, मैं तुम लोगों की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब सब कंफर्म करें कि अच्छा, आई ट्राई टू यूज जुपिटर फॉर दिस, आज मैं जुपिटर यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इट्स अ रियली गुड वे टू टेस्ट योर स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग। आप क्योंकि क्रोम ड्राइवर पूरा नया खुलता है एंड इट यूजुअली प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि आप बार बार उसकी स्क्रिप्ट रन करें, एक नया ब्राउज़र खोलें, यूजेस अप टू मच रैम, तो बेहतर ये है कि क्रोम ओपन ही हो, ठीक है। So simply what you guys do is from Selenium import WebDriver, ठीक है। अब Selenium is a testing tool जो normally टेस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल हो गया, and it has a different kind of implementation। सर्वर भी होता है इनका अपना, इनकी अपनी IDE भी होती है, but what we'll be using is the WebDriver, ठीक है। तो WebDriver में हमारे पास different classes होते हैं। We could either open a Firefox IDE, we could either open a not IDE driver, we could either open a Chrome IDE, we could either open a Edge IDE, ठीक है। अब इसके लिए आपके पास दो रिक्वायरमेंट्स लाजमी है। नंबर 1 जो बाइनरी हमने इंस्टॉल करी थी वो पड़ी हो आपके पास। नंबर 2 आपके पास क्रोम इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रोम इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और क्रोम को अकॉर्डिंगली मैंने ड्राइवर इंस्टॉल किया था उसका। तो अब दिस इज फॉर ओनली फॉर दोज पीपल जिनके पास अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई ना, वो मतलब पाथ नहीं मिला था उनको। तो व्हाट यू डू इज वेब ड्राइवर क्रोम
executable path is equal to dot काम नहीं करा. Nice. Very nice, very nice, very nice. कहाँ गया? Okay. Chrome driver. ठीक है. अब ये क्या करेगा कि if you guys notice मेरे पास एक ड्राइवर खुल गया, एक ब्राउजर खुल गया, ब्राउजर की विंडो खुल गई. कैन एनीवन कंफर्म? सब कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपके पास खुला. अच्छा, इन केस आपके पास पाथ मिल गया था एंड यू आर स्मार्ट इनफ टू गेट टू द पाथ, आप सिंपली ये करेंगे, आप एग्जीक्यूटेबल पाथ नहीं देंगे. ठीक है, आप नॉर्मली ओपन करेंगे. अब इफ यू गाइस कैन नोटिस मेरे पास, क्योंकि मैंने दोनों करे हैं, मेरे पास नॉर्मली भी पड़ा हुआ है लोकल पाथ में और मेरे पास वहाँ से भी पड़ा हुआ है, तो आई कैन ओपन बोथ इंस्टेंसेस. ठीक है, लेकिन तुम लोगों को वो अकॉर्डिंगली करना होगा. एक इंस्टेंस खोलना होगा जहाँ पे पड़ा हुआ है. मैंने अपने बोर्ड के लिए 2 के पेपर्स इंस्टॉल, पास्ट पेपर्स की बात कर रहे हो. बेहतरीन यार, मतलब दिस इज द काइंड ऑफ स्टफ यू गाइस शुड डू. ठीक है, लेट्स मूव अहेड गाइस. ठीक है, अब what Selenium does is it opens a complete web browser instant for you. ठीक है, इंस्टेंस खोल देता है पूरा. इसको पुराने वाला बंद कर देते हैं. ठीक है, अब you can, जैसे हमने क्या किया था, गेट रिक्वेस्ट मारी थी ऑन द वेबसाइट. कौन सी वेबसाइट में मारी थी हमने? लेट्स जस्ट गो फॉर https GitHub for now. ठीक है, क्रोम नॉट रीचेबल, क्योंकि मैंने क्रोम को बंद कर दिया. क्या ये रीजन है? यस, क्योंकि मैंने क्रोम पुराने वाले को बंद कर दिया था. नेवर माइंड. ठीक है, अब ड्राइवर डॉट गेट करेंगे और वेबसाइट का नाम देंगे या वेबसाइट की लिंक देंगे, नॉट नाम, और वो उस वेबसाइट पे जाके चला जाएगा लाइक यू वुड ऑन अ नॉर्मल ब्राउजर. अब सपोज करें कि मुझे अपनी प्रोफाइल पे जाना है, तो nashergithub.com/c. ठीक है, यू गाइस कैन नोटिस कैसे ब्राउजर मेरी वेबसाइट पे चला गया. ठीक है, अब लेट्स मूव अहेड. और हमने एक वेब ड्राइवर ओपन तो कर लिया, बट अब Selenium हमारे पास ब्यूटीफुल सूप में क्या होता था, सेलेक्टर्स होते थे, एंड वी यूज टू कॉल select one और select टू गेट एलिमेंट्स. और यहाँ पे भी सिमिलर हमारे पास फंक्शंस होते हैं, दैट्स दे आर कॉल्ड फाइंड एलिमेंट बाय, फाइंड एलिमेंट्स या फाइंड एलिमेंट्स बाय. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ. ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय. अब बाय के एलिमेंट्स या एलिमेंट, आप एक ही एलिमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स भी सेलेक्ट, उस पर आगे आएंगे. तो अगेन CSS सेलेक्टर्स, वी वेंट ओवर CSS सेलेक्टर्स इन BS4. तो बेस्ट तरीका मैं पर्सनली प्रेफर यही करता हूँ कि हर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी CSS सेलेक्टर से करूँ, बिकॉज दैट्स हाउ यूजुअली पीपल वर्क. देयर इज ऑल्सो XPath वर्जन, वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ. ठीक है, अब सपोज करें मुझे क्या करना है कि आई वांट टू फाइंड ऑल माय पिन रिपोजिटरीज. हाउ विल आई गो अबाउट दैट? तो हमारे पास एक प्यारा सा इंस्पेक्ट एलिमेंट का टूल होता है. तो मुझे सपोज करें कि ये लिंक्स ढूंढनी है, तो क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और मुझे वहाँ पे पहुँचा देगा कि ये कौन सा एलिमेंट है या कौन सा HTML का कौन सा टैग है. राइट, आई होप दिस इज विजिबल टू यू गाइस. इंस्पेक्ट. अब मुझे सपोज करें कि href पे जाना है, addtag पे जाना है. addtag इज अ लिंक फॉर द थिंगी. अब मुझे कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ, दिस इज द लिंक, राइट, राशन ऐप, और वो यहाँ पे आ रही है href से इक्वल टू. तो सपोज करें मुझे एंकर टैग्स चाहिए सारे जो पिंड है, मतलब दैट लीड्स टू माय रिपोजिटरी. तो व्हाट आई गो अबाउट कि मैं ढूंढता हूँ कि क्या इसमें कोई क्लास है दैट्स रिस्पांसिबल फॉर फाइंडिंग एनीथिंग. तो मुझे पता चलता है कि टेक्स्ट डॉट बोल्ड फ्लेक्स ऑटो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. और लेट्स गो टू इट्स पेरेंट, और इसका पेरेंट क्या है, div, ये वाला div. और इस div में क्या है, डी फ्लेक्स, विथ फुल फ्लेक्स, आइटम सेंटर. अगेन दिस इज जस्ट आर्बिट्ररी क्लासेस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पता नहीं चलती कि कंटेंट क्या है. लेकिन इफ आई गो वन पेरेंट अबव, तो मुझे पता चलता है पिंड आइटम लिस्ट आइटम कंटेंट. So this is a semantically correct div class name. तो usually हम semantically correct मतलब उस div को पकड़ते हैं जो हमें लगता है कि यार this is not something that's imported from bootstrap वगैरह, या उसकी styling को explain नहीं करता, but वो चीज़ explain कर रहा है कि इस चीज़ इस content में है क्या. तो semantically हमें पता है कि ये सारी चीज़ें pinned वो हैं. तो मैं नॉर्मली इसके क्लास के हिसाब से पता लगाऊंगा इनका कि मुझे एक div है जिसका क्लास पिन आइटम लिस्ट आइटम कंटेंट है, और उसके बाद एक div है, उस div के अंदर एक एंकर टैग है, वो चीज़ मुझे चाहिए. राइट,
Let's try to go about it. Find elements by CSS selector and div dot ये पूरी चीज, और उसके बाद इनके अंदर एक div है और इनके अंदर a टैग है. That's all I want, right? तो इनको हम सेव कर देते हैं pinned repositories में या repos में और simplicity. तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास Selenium में, प्राइमर रिपोर्ट, वेब एलिमेंट, पता नहीं क्या चीज़ है. ठीक है, तो सिंपली ज़ीरो मतलब पहला वाला निकालता हूँ, डॉट टेक्स्ट करता हूँ, दैट्स व्हाट आई गेट, राशन ऐप, दैट्स माय पिन रिपोजिटरी. ठीक है, उसके अंदर का कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट ये है. यहाँ तक चीज़ समझ आती है. देन आई विल गो इनटू व्हाट दिस वेब एलिमेंट इज. ये क्या चीज़ डिफाइन कर रहा है. So this is a web element object, selenium.webdriver.remote.webelement.webelement. ठीक है, और ये सेशन है और सेशन का एलिमेंट का रेफरेंस वगैरह है, डजंट मैटर, सिमेंटिक्स. अब नॉर्मली आप जो टैग्स फाइंड करते थे सेलेक्ट वन से, ठीक है, मैं आपको यही काम रिक्वेस्ट भी करके दिखाता हूँ. import request from bs4 import beautiful soup, make is equal to rest is equal to request dot get this thingy, और bs4 repos is equal to soup. पहले soup करते हैं. soup is equal to beautiful soup, rest dot content html dot parser और repos equal to. अच्छा, एक चीज़ CSS selector की ये अच्छी है कि you guys can just copy this whole thing, और वही चीज़ soup में भी काम करेगी, beautiful soup में भी काम करेगी. select. You guys can notice कि हमारे पास सिर्फ HTML कोड आ रहा है. That's just a tag of anything. एक tag आ रहा है हमारे पास. It's not interactable or anything. But if I go for repos through this thing, मतलब हमारे पास जब repos वो वाली Selenium WebDriver के साथ आती है, तो there are alternative benefits to this as well. अब वो alternative benefits क्या हैं कि सपोज करें पहले सबसे पहले मैं सारी repos अपनी प्रिंट कर देता हूँ. for repo in repos print repo.text. Okay, these are all the repos. अच्छा, by the way, Albert launcher is not my repo. It's just a fogged repository. बाकी ये सब मेरी है. Okay, so what's the beauty of Selenium? ये चीज़ तो मुझे repo से मिल गई, तो ये तो beautiful soup में मुझे मिल रही थी. There is an interesting thing about it. Okay, what is that? टेक्स्ट तो तुम लोगों को मैंने दिखा दिया कि हाउ डू यू गेट अ टेक्स्ट. डॉट टेक्स्ट करके आप एट्रीब्यूट्स भी निकाल सकते हैं. डॉट गेट एट्रीब्यूट href. तो सपोज करें मुझे रेपो का टेक्स्ट भी चाहिए, कॉमा उसकी लिंक भी चाहिए, तो डॉट गेट एट्रीब्यूट. उसमें क्या होता था, थोड़ा सिंपलर सिंटैक्स था in beautiful soup. आप डिक्शनरी की तरह उसको वो कर सकते थे, बट यू हैव टू यूज फंक्शन कॉल्ड गेट एट्रीब्यूट ओवर है. ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट तो मिल गया आपके पास. व्हाट्स इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट Selenium is that dot zero, a web element repos. ये element है मेरे पास, I can perform stuff on it. ठीक है, अब usually web scraping में sometimes आपको चाहिए होता है कि you need to go to this website as well, you need to go to this website as well. Why go about using React using repos using request for it? आप सिंपली डॉट क्लिक करके नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर वो कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट में खोलता हूँ एंड आई ओपन दिस ऑन दिस थिंग. तो आप नोटिस कर रहे हैं कि जैसे मैं रिपो जीरो मतलब पहली रिपो दैट इज रिपोज डॉट टेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको. राशन ऐप वाली जो रिपोजिटरी है दिस थिंग, डॉट क्लिक करूँगा, जो नॉर्मली ह्यूमन क्लिक करता है इस तरीके से उसको एक्शन को परफॉर्म कर देगा. जैसे कि मैं यहाँ पे राशन ऐप क्लिक करता हूँ और मेरे पास राशन ऐप की रिपोजिटरी खुल जाती है. राइट, यहाँ पे राशन ऐप को क्लिक करता हूँ और ओके आई गो ओवर कि एरर हमारे पास क्यों आया इन अ बिट. पहले ये रेप्लिकेट करके दिखा देता हूँ मैं आपको. और रिपोज मिल गया ना.
0 dot click. Very nice. उस वो beautiful soup वाला मैं कोड चला रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से रेपो मिल गई मुझे एंड रेपोस. ठीक है, रेपो 0 डॉट क्लिक. और इसने नॉर्मली जैसे ह्यूमन क्लिक करता है उसने ह्यूमन की तरह क्लिक कर दी, राइट, एंड यू आर ओवर है. ठीक है, अंडरस्टूड कैसे काम कर रहा है. अयान वो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से रिपोजिटरी से पीछे आता हूँ, मुझे पता चलता है कि सिमेंटिकली इस पूरे कंटेंट को डिफाइन करने के लिए एक लिस्ट आइटम है, पिन्ड आइटम लिस्ट आइटम है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं. मैं अल्टरनेटिव तुम लोगों को इसका ट्रिक बताता हूँ कि पिन्ड आइटम के अंदर भी एक टेब है और जिस टेब के अंदर पिन्ड आइटम DSC डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन के ऊपर दिस थिंग इज द वन वी वांट, राइट. सो पिन्ड आइटम कंटेंट लिस्ट एंड फिर से करके दिखा रहा हूँ लोगों को. So driver dot find elements by CSS selector dot print content item list. उसके अंदर एक div है जो फर्स्ट div है वो मुझे चाहिए, और उस div के अंदर जो anchor tag है वो मुझे चाहिए, right. So find elements by not selector, by CSS selector. So that's what how I get the elements. और ये जाके repos में चली गई. repos 0 dot text सही है, dot get attribute href मतलब उसकी लिंक है. that's good enough as well. तो अल्टरनेटिवली आप driver dot get भी कर सकते हैं कि इस पे चले जाएं driver dot get this thing, वो भी लिंक पे चला जाएगा, राइट. या अल्टरनेटिवली क्लिक भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मली यू वुड डू ऑन अ वेबसाइट. ठीक है, द क्लिकिंग पार्ट इज अंडरस्टूड सो फार. क्लिकिंग कैसे हो रही है? अच्छा, हो गया, क्लियर हो गया. बेहतरीन 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 बेहतरीन. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा. तो डॉट क्लिकिंग वगैरह समझ आ गई, तो लेट्स मूव अहेड. अब तुम लोगों को समझ आई द पावर ऑफ सेलेनियम, किस तरीके से नॉर्मली हाउ वुड यू गो अबाउट क्लिकिंग स्टफ. अब काफ़ी बेहतरीन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है सेलेनियम की कि सिंस इट्स ब्राउज़र इटसेल्फ पूरा ब्राउज़र को रेप्लिकेट कर रहा है, उसको कॉपी कर रहा है या मॉक कर रहा है. तो ड्राइवर डॉट गेट, अगर रिमेंबर द रिएक्ट वेबसाइट, द कैलकुलेटर वेबसाइट दैट वी डिस्कस्ड इन द BH4 सेशंस, ब्यूटीफुल सूप सेशंस, जहाँ पे हम उसको नहीं चला पा रहे थे फॉर सम रीज़न. याद आ रहा है वेबसाइट? अब मैं इसको ब्यूटीफुल सूप से वो कर रहा था, पार्ट कर रहा था, आई कुडंट गेट एनीथिंग. तो मैं आपको दिखा देता हूँ. वो soup is equal to s is equal to request dot get this thing. Soup is equal to beautiful soup s dot content html dot parser soup dot prettify. As can notice कि मेरे पास सिर्फ ये आ रहा है from the whole code. राइट. क्यों ये क्यों है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पाता ब्यूटीफुल सूप. बट सिंस प्यारा सेलेनियम यूजेस कंप्लीट ब्राउजर, तो सेलेनियम ये पूरी चीज़ पार्स कर पाता है, राइट. तो ड्राइवर डॉट गेट दिस थिंग, यू गाइस कैन नोटिस ये पूरा सही तरह से मेरे पास नॉर्मली एज अ ह्यूमन वुड सी इट उस तरीके से आ गया. zoom out a bit and driver dot get this thing again. You guys notice सही तरह से तो शो के मैं मजाक नहीं उड़ा रहा. .com पे चले जाते हैं and we come back to this website. ठीक है, तो the JavaScript is executed. Now हम इस अगर सपोज करें कोई React वेबसाइट है तो we can scrap that as well. अब
सपोज करें, लेट्स फॉर द पेट प्रोजेक्ट एक मजेदार प्रोजेक्ट बनाते हैं यूजिंग दिस कोड ओनली, ठीक है। सपोज करें आई एम टू लेजी और मैं चाहता हूँ कि मैं इस वेबसाइट पे जाऊँ एंड 9 × 9 का वैल्यू लेके आऊँ, राइट। सो हाउ डू आई गो अबाउट दैट, कैसे करेंगे ये? कोई आइडिया है कि मुझे स्लेरियम से 9 × 9 = 81 ये एग्जीक्यूट कराना है? Any rough ideas before to start? And I'm sorry यार, मैं उसको नहीं कर सकता। अब HTML parser क्या चीज़ है? You just have to go through the previous sessions and you look into PS4 documentation. Okay, that's a really good question. Instead of कि HTML parser मैं समझाऊँ क्या है? So the difference between HTML parser and LXML is कि what is HTML? It's hypertext markup language, right? Hypertext markup language. But XML is extensible markup language. So HTML is a part of extensible markup language. मतलब HTML को अगर थोड़ा extend कर दें, उसका superset बनाए तो XML आ जाता है, LXML आ जाता है, ठीक है। अब LXML is कि वो HTML को भी parse कर पाएगा, but HTML5 वगैरह या HTML5 या दूसरे जिस वो होते हैं जैसे मार्कडाउन वगैरह हो गया, उन चीज़ों को भी सही तरह से पार्स कर पाएगा। मार्कडाउन इट्स इटसेल्फ एक लैंग्वेज एज वेल। अब XML देखें, XML इज ऑल्सो काइंड ऑफ लैंग्वेज जो यूज होती है कि जैसे LXML मेविन वगैरह की रिपोजिटरीज वगैरह अगर किसी ने देखी होंगी तो दैट्स वेयर LMXL और सॉरी XML इज यूज्ड। XML दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। दिस इज हाउ XML लुक्स, ठीक है। थोड़ा थोड़ा HTML को वो करती है, रिसेंबल करती है, बट इट्स नॉट HTML एक्चुअली, ठीक है। दिस इज LXML और दिस इज XML। तो सारी चीज़ों को अगर पार्स करना है यूजिंग अ सिंगल पार्सर तो LXML इज व्हाट हाउ इट हैपेंस। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यूजिंग LXML और HTML.parser। आपको जो चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है, इफ़ योर कंटेंट इज HTML5 वगैरह तो आप LXML भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड बोथ और आई पर्सनली प्रेफर LXML, बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने HTML पार्सर यूज़ किया था ताकि यू गाइस डोंट गेट कंफ्यूज्ड। Good question, Savan. Very good question. Let's move ahead. अच्छा, तो inspect buttons for attributes. And that's really good. That's how we start scrapping this thing. तो start करते हैं, let's go back to here और right click करके inspect करते हैं। So I want number 9, right? 9 × 9 is equal to, तो मुझे पता चलता है कि they are in all of these buttons are enclosed in a div called component button। मसला आ जाता है यहाँ पे। अब सारे component button होंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक स्पेसिफिक 9 को, ठीक है। चलें पहले कंपोनेंट बटन तो सारे निकालते हैं। ड्राइवर डॉट गेट और सॉरी फाइंड एलिमेंट्स btns is equal to driver dot find elements by css selector और component div dot component। अच्छा div dot लिखें या डॉट लिखें सेम चीज़ है। I prefer to write div dot component button, उसके अंदर एक बटन का टैग है, ये सारी चीज़ें लेके आओ btns, ठीक है। लुक्स गुड इनफ। तो btns 0 का टेक्स्ट प्रिंट करते हैं ऐसी। यू गाइस कैन सी है, तो पहला बटन क्या है, ऐसी। btns 1 is plus divide or something. I think this is for the sign button. This is 3, this is the divide button and everything, ठीक है। तो अब अल्टरनेटिवली अगर मुझे 9 प्रेस करना है तो व्हाट आई कैन डू इज फॉर btn and btns, if btn dot text is equal to 9, btn dot click क्यों नहीं हुआ, बेहतरीन। print btn dot text is equal to अच्छा सॉरी वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 9। तो यू गाइस नोटिस्ड हाउ 9 आ गया यहाँ पे।
इतना समझ आया ये किस तरीके से किया मैंने कि 9 को फाइंड करके btn डॉट क्लिक कर दिया, जिसका 9 आ रहा हो। ओके ठीक है, कुमार गॉट इट कि किस तरीके से करना है। एनी अदर कमेंट्स? हाँ गाइस बताएं, अंडरस्टूड है? ऋतिक को समझ आया? बेहतरीन। भैया को समझ आ गया, ठीक है बेहतरीन। लेट्स मूव अहेड। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट? मल्टीप्लाई को दबाना है, तो व्हाट आई डू इज फाइंड एक्स, तो क्लिक करा दिया। कुछ आउटपुट दिखेगा नहीं क्योंकि अपेरेंटली फॉर सम रीजन इसका आउटपुट नहीं दिख रहा। और फिर से मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो ख़राब हो गया, सही तो नहीं किया इसने। आई थिंक एक्स वाली चीज़ सही नहीं आई थी। लेट्स ट्राई अगेन। पहले 9 क्लिक करें, उसके बाद इसको जहाँ पे भी एक्स मिलता है या मल्टीप्लाई मिलता है, व्हाट इज़ दिस वैल्यू, एक्स स्मॉल है, वो खुद लार्ज कर रहा है उसको जाके पीछे, तो आई हैव टू क्लिक ऑन स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई हो गया, अब मतलब मल्टीप्लाई का क्लिक हो गया। नेक्स्ट आई हैव टू ऐड द सेकंड नंबर दैट इज 9 इटसेल्फ, तो 9 को फिर से प्रेस किया तो 9 आ गया यहाँ पे ऊपर। नाउ आई हैव टू प्रेस इक्वल, तो 81 आंसर आ गया। समझ आया? मज़ा आया? हाँ, लोअर केस एक्स है। आई एम सॉरी अनस, नींद आ रही है मुझे शायद। ये चीज़ 81 ऑपरेशन समझ आई कि कैसे 81 निकाला मैंने। ओके, मलिया को समझ आ गया, ऋतिक को समझ आया। मज़ा आ रहा है आज तुम लोगों को, हैं? ओके क्लियर है, बेहतरीन। चलो लेट्स pulling the strings through Selenium. Yes, that's what we are trying to do. That's what this is. अच्छा, JavaScript का भी similar एक वो है framework है, that's called Puppeteer. So just like you control a puppet, this is how the puppeting thing works. बेहतरीन। चले तो यार, मुझे ना बीइंग अ गुड प्रोग्रामर ये चीज़ पसंद नहीं आती। सपोज करे कि मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करे, 9x9 9 इंटू 9 इज इक्वल टू, अब मेरे पास कितनी दफ़ा लूप चलेगा? 1 2 3 4 टाइम्स लूप्स क्यों? मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है ना। लेकिन जबकि मुझे पता है कि अगर मैं सारी चीज़ प्रिंट करूँ, आई काउंटर प्रिंट करता हूँ, फिर तुम लोगों को एक चीज़ दूसरी प्रिंट दिखाता हूँ। प्रिंट काउंटर कॉमा btn डॉट टेक्स्ट। अगर मुझे पता है कि, अच्छा सॉरी, काउंटर प्लस तो करूँ, काउंटर प्लस इज इक्वल टू 1। तो अगर एक चीज़ मुझे पता है कि 0 पे एच ही होगा हमेशा, और 1 पे हमेशा प्लस माइनस दिस थिंग ही होगा, और 2 पे ये चीज़ होगी, 3 पे ये चीज़ होगी, 4 पे 7 होगा, 5 पे 8 होगा, 6 पे 9 होगा, तो why cannot I build kind of a mapping और thingy, जो मुझे जब भी मैं उससे मांगू कि भाई मुझे 9 की इंडेक्स दे दो, तो वो मुझे 6 रिटर्न कर दे, और डायरेक्ट जाके उसको प्रेस करूँ मैं। और x मुझे चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई चाहिए, तो 7 को जाके प्रिंट कर लूँ मैं, मतलब 7 जाके एक्सेस कर लूँ मैं। राइट? ये चीज़ समझ आ रही है? हाउ डू आई डू इट? व्हाट डू यू गाइस थिंक? कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है so kind of resembles a mapping of some kind? चीफ, तुम लोग वहाँ पे पहुँचते हो जो मैं पहुँचाना चाहता हूँ, जहाँ पे तुम लोगों को लूप्स तो यूज समझ नहीं आ रहे थे क्या करना चाहते हो, बट यस, यूजिंग लूप्स फॉर समथिंग लाइक दिस इज रियली रिडंडेंट। बार बार जाके हर कैरेक्टर को चेक करवाओ, यूजलेस ऑपरेशन। लिस्ट ठीक है, तुम लोग क्लोज हो, बट आई थिंक लिस्ट कैसे इस्तेमाल होगी? इफ आई वांट टू डू दिस थिंग, ओके, कुमेल इज रियली क्लोज। मुझे एक बात बताओ, हाउ डू आई इंडेक्स बाय? मुझे सपोज करें कि मल्टीप्लाई चाहिए, तो आप तो सिर्फ नंबर से इंडेक्स कर सकते हैं ना एक लिस्ट को, राइट? मुझे तो इंडेक्स इटसेल्फ चाहिए, मुझे इंडेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 पे जाके ये लिस्ट बना देता हूँ 9 8, ठीक है,
तो अगर मुझे 9 चाहिए तो सॉरी, मुझे पता करना है कि 9 कहाँ पे किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है. दैट्स नॉट समथिंग आई कैन डू विद अ लिस्ट, राइट? ओके, लक्ष्य बोल रहा है कि टपल यूज करें और हसाम भी बोल रहा है कि टपल यूज करें. श्योर, टपल टपल इज अ रियली गुड थिंग टू डू, बट टपल में अगेन सर्च कैसे करोगे? अयान पहुंच गया. अयान पहुंच गया. यप, अयान विल बी यूजिंग अ डिक्शनरी. सो डिक्शनरी क्या करती है? अगेंस्ट एन स्ट्रिंग इनपुट आपको उसकी इंडेक्स बता देती है. तो क्योंकि मुझे रिवर्स ऑब्जेक्ट चाहिए कि किसी वैल्यू से मैं इंडेक्स निकाल दूँ इंस्टेड ऑफ इंडेक्स से कोई वैल्यू निकालूँ, दैट्स हाउ आई यूज डिक्शनरी. तो परफेक्ट यूज केस ऑफ अ डिक्शनरी. ठीक है, तो लेट्स डिफाइन अ डिक्शनरी. ये पूरी चीज़ उठा के इसकी डिक्शनरी बना देते हैं. मुझे पता है कि ऐसी एग्जिस्ट ऑन 0 और नहीं सॉरी, उल्टा प्रिंट करना है इसको. btn डॉट टेक्स्ट और काउंट है. तो ये सारी चीज़ कॉपी करता हूँ एंड आई शो यू सम VS कोड ट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे खुद कॉमर्स डालना काफ़ी रिडंडेंट हो जाएगा. तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आ गई. आई जस्ट गो डाउन, कॉल दिस अ लिस्ट और इसके अगेंस्ट दीज आर द इंडेक्सेस. और चूंकि मुझे कॉमर्स भी चाहिए तो आई जस्ट ऐड कॉमर्स. इसकी स्टार्टिंग में एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी की ओपनिंग और डिक्शनरी क्लोजिंग. ठीक है, तो इसको बोल देते हैं करेक्ट चार टू इंडेक्स. तो अगर मैं चार टू इंडेक्स को बोलूँगा, यार मुझे बताओ इक्वल की इंडेक्स क्या है, वो खुद ब खुद 18 निकाल के आ जाएगा. ये चीज़ समझ आई मैंने क्या करी? आगे समझ आ गई होगी सबको, सुबह को समझ गए. चलो लेट्स मूव अहेड. अब एक सिंपल ट्रिक है. मुझे सपोज करें कि इनपुट क्लियर करना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड फाइंडिंग द कैरेक्टर माई सेल्फ, वॉट आई डू इज, मुझे पता है कि बी टी एन्स चार टू इंडेक्स मुझे AC क्लियर करना है, डॉट क्लिक. तो मैंने क्या किया, चार टू इंडेक्स से AC की इंडेक्स निकाल दी और AC की इंडेक्स ये क्या रिटर्न करेगा? 0. और बी टी एन्स में जाके उस इंडेक्स पे जो चीज़ एलिमेंट पड़ा होगा उसको क्लिक कर देगा. क्लिक हो गया, बेहतरीन, राइट? आया. अब मुझे सपोज करें कि 9 इंटू 9 करना है, तो व्हाट आई डू इज 9 x 9 इक्वल्स. अब बताएं, अब मजा आया? समवॉट क्लियर हसाम. ओके, अब बताएं, ये जो मैंने काम किया था उसके बाद क्लियर हो गया ज़्यादा? ये क्यों किया हमने एंड व्हाई इट हेल्प्ड अस? आई गेट इट, हमारे लूप्स खत्म हो गए. What if we don't know the index and all are just symbols? Then हाँ बिल्कुल अनस, बेहतरीन. मतलब अब सपोज करें कि अगर ये रेस्पॉन्सिव UI होती और बटन्स नीचे ऊपर होते, राइट? तो ऑफ कोर्स मसला होता है इसमें ज़्यादा टू मैप द इंडेक्स टू इट्स कंटेंट. लूप्स वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन अगर हम डिक्शनरीज पढ़ के आए तो व्हाई नॉट यूज़. हाँ बिल्कुल यही मसला है कुमैल की, अगर डेटा ज़्यादा हो गया तो फिर मसला हो जाएगा, देन यू कैन नॉट यूज़ मैप्स वगैरह. ठीक है, एक में करोगे अभी देते क्या? नहीं नहीं, मैं भी करके रहा हूँ तो तुम लोगों को. इफ़ यू गाइस वांट टू, 4 लाइन्स को भी एक लाइन में कर लेते हैं फंक्शन इस्तेमाल करके. अगर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आ गई कि हो गई कि किस तरीके से हमने एक पूरे इसको इंटरेक्ट करके डिक्शनरी में चेंज कर दिया, तो आई विल शो यू गाइस माय स्क्रिप्ट दैट आई बिल्ट फॉर द सेशन टुडे. उसको और वो करेंगे फिर. ये शाह फंक्शन यूज करके इससे सिंपल करते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे. चले, आई विल शो यू गाइस स्क्रिप्ट नाउ, मैंने बनाई थी. इसको बंद करते हैं. लेट्स मूव अप. ls code dot. So this is the script I created for the website.
ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये मैं सिंपल टू इंडेक्स मैपिंग वगैरह इस्तेमाल करी है। तो लेट्स मूव अहेड एंड शो यू गाइस हाउ इट वर्क्स पाइथन रिएक्ट कैल्क। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मली जैसे मैंने वहाँ पे खोली थी ये वेबसाइट वो खोल के मेरे पास ब्राउज़र खोल के वेबसाइट पे चला जाता है। ओके, अब what the script does is कि ये आपके लिए instead of you guys having to go over the बटन्स वगैरह खुद ये पार्सर एक पार्सर बना दिया मैंने। तो मैं इस पर एक्सिक्यूट कराऊंगा कि 1+1 करो, तो इट विल ऑटोमेटिकली प्रेस द बटन्स और वो इसका रिजल्ट आ जाएगा 7 × 5 5 क्लियर वगैरह सब कुछ खुद कर रहा है। और द इनपुट इज डूइंग मतलब आई एम डूइंग नथिंग। 10 × 10 5 × 5 -10 -5। ठीक है, और एग्जिट करूंगा तो एग्जिट कर देगा। अब इसमें और ज़्यादा मज़ा आया। So around the whole Selenium, I built a script, and that's how usually you program your scripts to be applicable. और मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग ये चीज़ें जाके करो आफ्टर एवरी सेशन। कोड को मैं समझाता हूँ। How the code works. नहीं अनस नहीं है, नहीं बोला जी। चले स्टार्ट करते हैं। तो यानी स्क्रिप्ट्स का मैं थोड़ा आपको वो बता देता हूँ कि हाउ डू आई गो अबाउट सेलेनियम स्क्रिप्ट्स। मैं अपना ड्राइवर ग्लोबली डिफाइन करता हूँ, और दो चीज़ें मैंने इसके अलावा भी ग्लोबली डिफाइन करें कि आई गो की वो ग्लोबली क्यों डिफाइन करें। मैंने ड्राइवर इसलिए ग्लोबली डिफाइन करा है कि बार बार फंक्शंस को वो चीज़ ड्राइवर का इंस्टेंस पास करना दैट्स रियली रिडंडेंट, तो मैं इसको ग्लोबली डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि हर फंक्शन को ड्राइवर तो चाहिए होगा मोस्टली, तो इसको ग्लोबल डिफाइन करना ज़्यादा बेहतर रहता है। ग्लोबल डिफाइन तो किया है, लेकिन सिर्फ मैं उसको मॉडिफाई विद इन द क्या बोलते हैं मेन फंक्शन करूँगा। तो मेन फंक्शन और शायद वहाँ पे एक और कोई जगह करूँगा, उसके अलावा कहीं नहीं करूँगा। दैट्स हाउ आई गो अबाउट माई स्क्रिप्ट। ठीक है, तुम लोगों को कोड क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है, कोड दिख रहा है सबको? सही रहती है कि नहीं, कंफर्म कि कोड दिख रहा है इन लोगों को? हाँ दिख रहा है। Okay, बेहतरीन। So first of all, since I am overriding driver and calc buttons जो global variables हैं, तो मैंने उसको define किया कि global पहले keyword बता दिया। You have to define the reference जो मैंने I think week 1 day 2 में किया था ये चीज़ कवर। week 1 day 2 में ये चीज़ जाके देख लें अगर आपको इंटरेस्टेड है कि global keyword क्या कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक initiate browser का फंक्शन डिफाइन किया है जो एक लिंक लेता है और वो ड्राइवर इंस्टेंस बना देता है मेरा क्रोम का। कोड को मैंने फंक्शन इसलिए मैं फंक्शन में डिवाइड किया कि ताकि इट्स एक्सेसिबल और ज़्यादा पता चल जाए कहाँ पे एरर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये करता क्या है कि एक रेफरेंस बना के ड्राइवर का, और वो बस इसको रिटर्न कर देता है मेन फंक्शन को, और ड्राइवर वहाँ से इनिशियलाइज होता है ग्लोबली। उसके बाद जैसे मैंने अभी बटन्स निकाले थे वही div डॉट बटन्स निकाल दिए मैंने, और कैल्क बटन्स ग्लोबली डिफाइंड है, वो भी यहाँ पे ही है। अब for I button enumerate, this is just for printing I guess, printing के अलावा कुछ नहीं था, इसको हटा ही दो तो कोई मसला भी नहीं। ठीक है, अब मेरा एक फंक्शन है दैट्स कॉल्ड प्रोग्राम लूप। अब दिस इज हाउ यूजुअली गुड प्रोग्राम्स और गुड एप्लीकेशंस आर कोडेड, या हर प्रोग्राम की अगर किसी भी उसमें डेप्थ में जाओ, इट्स जस्ट ए प्रोग्राम लूप जो कुछ काम करता है, उसके बाद सब कुछ डिलीट हो जाता है। स्टार्ट होता है, कुछ काम होता है, डिलीट हो जाता है। प्रोग्राम लूप है जिसमें सारी मेरी लॉजिक लिखी हुई है जो प्रिंटिंग वगैरह एंड एवरीथिंग। सो माय प्रोग्राम लूप इज टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया है, दिस इज योर इनपुट। मैं बंद कर देता हूँ, इसको चलाता हूँ। Let's close this up for now. और कीप इंटरिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू सॉल्व वगैरह, तो और ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये एग्जांपल्स कुछ दिए हैं, प्रिंटिंग का नहीं बता फाइन कर रहा। तो अब मेरे पास एक वेरिएबल है एक्सप्रेशन का, तो मैंने बोला कि जब तक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एग्जिट नहीं आता, बंदा इनपुट नहीं करता कि एग्जिट, तब तक ये लूप चलता रहेगा और एक्सप्रेशन इनपुट लेता रहेगा। इनपुट में क्या है कि एक्सप्रेशन यहाँ तो एंटर करेगा तो एग्जिट लिखेगा बंदा,
तो जैसे ही कुछ लिखता है तो मैंने उसको बोला कि जो भी एक्सप्रेशन दी हुई है मैंने वैलिडेट एंड एग्जीक्यूट फंक्शन को ट्रांसफर कर दी। वैलिडेट एंड एग्जीक्यूट फंक्शन क्या करता है कि अगर एग्जिट है इनिशियली फर्स्ट कंडीशन एग्जिट दिखाई देता है उसको, वहाँ पे रिटर्न नन कर दो। और जब नीचे मेरा लूप रिटर्न नन आता है उसके पास, तो इफ आंसर, अब आंसर क्योंकि नन होगा तो ये चीज़ कैंसिल हो जाती है, मतलब एग्जीक्यूशन बंद हो जाती है। और एक्सप्रेशन में क्योंकि एग्जिट होगा तो एग्जिट हो जाएगा खुद ब खुद ऊपर लूप में वापस चेक करते हुए वक्त। ठीक है, तो अब कैल्क बटन सिंबल टू इंडेक्स एसी, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि उस फंक्शन में जाके क्लियर किया पुराना इनपुट, ताकि पुराना एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू वगैरह है वो ओवरराइड हो जाए। और फॉर सिंबल एंड एक्सप्रेशन, और हर सिंबल जो भी कैरेक्टर उसमें है 9, 20 जो भी है इनटू समथिंग, तो अगर वाइट स्पेस है तो उसको इग्नोर करो, इसलिए इस पर भी काम करेगा। 20 × 5 = 100, तो स्पेसिस को इग्नोर कर रहा है। अब फॉर ईच सिंबल जैसे 2, 0 इसको ब्रेक करेगा और सबसे पहले मुझको निकालेगा। ठीक है, डॉट गेट। अब क्योंकि डिक्शनरी में मैंने आपको डॉट गेट फंक्शन बताया था कि जाके देखेगा कि डिक्शनरी में डिफाइंड है कि वो चीज़ नहीं है। अब मैं सपोज करो यहाँ पे ए करता हूँ तो इनवैलिड एक्सप्रेशन देगा। क्यों? क्योंकि सिंबल जाके ये एग्जिस्ट करती नहीं डिक्शनरी में। दिस इज व्हाई यू यूज डिक्शनरीज। ठीक है, कोड आपका आसान हो जाता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे नन रिटर्न कर दो अगर एग्जिस्ट नहीं करती डिक्शनरी में वो की, और अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो इनवैलिड एक्सप्रेशन प्रिंट करके रिटर्न नन करा दो, और वापस रिटर्न नन होगा तो इट लास्ट फॉर द नेक्स्ट इनपुट। क्योंकि अभी तक एग्जिट नहीं आया एक्सप्रेशन में, सिर्फ इनवैलिड एक्सप्रेशन थी, तो री इनपुट लो, शायद यूज़र से कोई गलती हो गई है। फिर हमने क्या किया कि क्लिक बटन्स, अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, मतलब स्पेस भी नहीं है, सिंबल भी एग्जिस्ट करती है, तो जाके मतलब डिक्शनरी में वो सिंबल एग्जिस्ट करती थी, तो जाके उस बीटीएन इंडेक्स जो यहाँ पे निकाली थी उस बीटीएन इंडेक्स को क्लिक कर दो। तो सबसे पहले जैसे हो रहा है हमें यहाँ पे 2 पे जाके क्लिक कर देगा, फिर 0 पे क्लिक करेगा, फिर स्पेस को इग्नोर कर देगा, फिर मल्टीप्लाई, देन स्पेस को इग्नोर करके 5। तो मैं तुम लोगों को बाय स्लीप 1 ये चीज़ करके दिखाता हूँ, तो दिख जाएगी कैसे काम कर रही है। टाइम डॉट स्लीप 1। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्ट टाइम करते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ, एग्जिट, क्लियर, रिएक्ट कैल्क, और 2 + 2। तो ये अब से एक सेकंड लेगा इनपुट के लिए, इसको बंद करने दो। 2 1 सेकंड +2। ठीक है, सिमिलरली 5 × 5, पहले 5 इंटर किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर 5, 25। और लाइकवाइज आखिर में आंसर के लिए जो यहाँ पे कंटेंट है वो निकाल दो, एंड दिस प्रिंटेड ओवर है 5 × 5 = 25, तो ये आंसर रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे जाके एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आंसर प्रिंट हो जाएगा इफ आंसर इज नॉट नन। लाइन 72 क्या है? वेयर इज लाइन 72? यार लाइन 72 तो खा लिया। ओ अच्छा, मे बी मैंने टाइम इंटर किया इसके लिए, आपको उस वक्त कुछ और होगी। राइट राइट राइट, सॉरी। लाइन 72, अब लाइन 72 इज जस्ट टू फाइंड द कैलकुलेटर बटन्स को ढूंढने के लिए, जैसे मैंने दिखाया था तुम लोगों को। ये चीज़ समझ आ गई? पूरी स्क्रिप्ट समझ आ गई? अगर तुम लोगों का मूड है तो वी कैन आइदर बिल्ड अ कोड्स टू स्क्रैपर, या ये खुद कर ले। कोड्स टू स्क्रैपर तुम लोगों को याद होगा, codes2scrap.com, codes2scrap, ये वाली वेबसाइट तुम लोगों को याद ही होगी आई गेस। एग्जिट लाइसन फ्रॉम, अच्छा सॉरी, हमारे पास वहाँ पे खुला हुआ ना, ड्राइवर का इंस्टेंस खत्म है, नहीं है, ड्राइवर डॉट गेट, वेरी नाइस, क्रोम इज नॉट रीचेबल, ड्राइवर का इंस्टेंस बंद हो गया था एज आई सस्पेक्टेड ओरिजिनली, और ड्राइवर डॉट गेट। तो ये वाली वेबसाइट, you guys can scrap it yourself using Selenium now, using the selectors वगैरह इसमें सारा जाके, then instead of finding the link and doing a get on it, आप यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबा के यहीं पे विदाउट गोइंग टू अनदर लिंक आप ये काम कर सकते हैं।
ठीक है, दिखा देता हूँ। ड्राइवर डॉट गेट डॉट पेजर ए डॉट क्लिक, वेरी नाइस। डॉट गेट नहीं, डॉट फाइंड एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट्स और एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट लेके आओ, एलिमेंट्स मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स लेके आओ, क्योंकि मुझे एक एलिमेंट चाहिए यहाँ पे, लिस्ट नहीं चाहिए। बाय CSS सेलेक्ट, और इसको जाके क्लिक कर दिया तो ये नेक्स्ट पेज खुद ब खुद चला गया। साइड बाय साइड दिखा देता हूँ तुम लोगों को। और तुम्हें लूप में क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू राइट अ सिंगल लूप टू स्क्रैप समथिंग एंड जस्ट प्रेस नेक्स्ट। सॉरी, अब तुम लोगों ने नोटिस किया कि ये प्रीवियस चला गया, राइट? हमें नेक्स्ट को भी दबाना है, तो li डॉट क्लास नेक्स्ट, तो li डॉट नेक्स्ट, उसके बाद li डॉट नेक्स्ट ए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सो ऑन। ठीक है, दिस इज हाउ यू यूज सेलेनियम। कल हम और ज़्यादा भी इस पे काम करेंगे। दिस इज क्लियर सो फार, आज का पूरा काम क्लियर है। ओह, बुक्स टू स्क्रैप, ये कहाँ से मिली? रियली गुड वेबसाइट आई थिंक, मुझे याद है, आई यूज्ड टू स्क्रैप इट एज वेल, books2scrap.com। हाँ, एथरीन। यप, इसको स्क्रैप करो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ट्राई टू डू इट विथ सेलेनियम। यस, books2scrap.com पे जाओ। कैन वी यूज प्ले? हाँ, मतलब इन सम इंस्टेंसेस यू हैव टू डू इट। कभी कभी क्या होता है कि यू जस्ट वांट टू कंटेंट टू बी रेंडर्ड बाय जावास्क्रिप्ट, वंस द कंटेंट इज रेंडर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ये दिखा देता हूँ तुम लोगों को। वेरी नाइस क्वेश्चन अनस, दिखा देते हैं। I will have to go over. So let's go over to this thingy. ये वापस इस रिएक्ट कैलकुलेटर पे आ गया, the one that was really hard to scrap, और हम यही काम सूप से भी कर देते हैं ताकि तुम लोगों को पता चल जाए। तो मेरे पास सूप में नॉर्मली क्या आ रहा है यहाँ पे, कि भाई कहाँ गया, यू हैव टू रन, यू नीड टू एनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप। लेकिन अब ड्राइवर का अगर आप ब्यूटीफुल सूप को पेज सोर्स दे दें कि ड्राइवर ने तो क्योंकि पार्स कर लिया सारा जावास्क्रिप्ट, तो ड्राइवर डॉट पेज सोर्स डॉट html डॉट पार्सर या LXML भी रन करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। So you guys can notice now कि मेरे पास हाँ, मेरे पास सारा वो आ गया। तो soup डॉट select div डॉट component button for I in this print I dot text। ठीक है, so yes, you can use both Beautiful Soup and Selenium simultaneously. Have you ever worked with Scrappy? Yes, I have worked with Scrappy. और मेरा प्लान था इस बूटकैम्प में उसको इंक्लूड कराना, बट दिस इज अ पाइथन बूटकैम्प, नॉट अ स्क्रैपिंग बूटकैम्प। तो यस, वी कैन नॉट गिव एनी मोर वीक्स टू स्क्रैपी। स्क्रैपी इज रियली रियली गुड। मतलब एक पूरी लाइब्रेरी है, सपोज करें जैसे रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इज जस्ट फॉर HTTP, स्क्रैपी इज जस्ट फॉर स्क्रैपिंग। और एक पर्सनल स्टोरी तुम लोगों को बताऊंगा वंस आई डू द स्क्रैपी सेशन। होपफुली आफ्टर द बूट कैंप मैं एक स्क्रैपी का सेशन भी करवाऊंगा, उसमें ये चीज़ कवर कर लूँगा। हो गया कमेंट नहीं, पाई ऑटो GUI मैंने इस वीक मतलब इस बूट कैंप में नहीं कवर कराया। इंस्टेड आई वेंट फॉर पाई क्यूट एंड फ्लास्क। पाई ऑटो GUI पे कराओगे सेशन आफ्टर द बूट कैंप? करवा सकते हो। ऑल क्लियर गाइस? आज तक यहाँ पे ही रखें या आगे बढ़े? और 1.5 घंटा हो गया on 10:17। Click function that was used in feedback form script similarly to automate form filling। ऋतिक, उसमें फीडबैक के लिए you guys notice मैंने आज इनपुट नहीं कराया कुछ भी। So how do you go about logging in anywhere अगर कोई टेक्स्ट वगैरह इनपुट ही नहीं करेंगे Selenium में? सपोज करें फेसबुक में आपको लॉग इन करना है, हाउ डू यू गो अबाउट इट? फर्स्ट यू फाइंड द फील्ड्स के बाद सिर्फ लॉग इन बटन क्लिक कर थोड़ी करना होता है, आपको कंटेंट उसको फीड भी करना होता है यूजिंग इनपुट। सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेंड कीज, द फंक्शन सेंड कीज दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। और एक मज़ेदार प्रोजेक्ट भी है फॉर दिस वीक सेशंस। सिर्फ एक सिंगल असाइनमेंट है,
इस वीक, और उसको ही कवर करेंगे. होपफुली इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस. नहीं कमेंट, इट्स नॉट सेंड कीज, इट्स डॉट सेंड की, आई थिंक. सेलेनियम डॉट सेंड कीज तो नहीं था. था सेंड कीज था. पाइथन में अंडरस्कोर की नहीं था. यस, सेंड अंडरस्कोर कीज. हाँ, पाइथन सिंटैक्स में था ये. फेयरनेस बोल रहे आगे बढ़े 30 मिनट्स और. अतीक तुम बोलो, बताओ क्या मूड है. ऑफ करें? स्टूडेंट्स को देखते हैं, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है या अभी कम हो गया? हाँ मतलब 20 लोग यार, अजीब. मुझे मज़ा नहीं आ रहा इस तरीके से पढ़ाने में. नहीं, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर यही 20 लोग सीख जाए ना हमसे, हमारी वजह से बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है. अचीवमेंट तो वही है. मतलब आई एम रियली सरप्राइज टू सी द फ्यू गाइस दैट आर इन द सेशन राइट नाउ. वो प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं. एंड द वंस हु आर मिसिंग आउट टुडे, तुम लोगों को पता ही नहीं है द स्टफ आई डिड जस्ट नाउ. एटलीस्ट 50,000 40,000 स्टार्टिंग जॉब आप ले सकते हैं SQL इंजीनियर की, इफ यू नो हाउ दिस ऑल वर्क्स. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन जो आ रहे हैं ना. एक तो हाँ, अपने लिए फायदा है, और जो आ रहे हैं जो वो बहुत सब शुक्रगुजार है. भाई आप लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं. और जैसे ये कंटेंट YouTube पे आपको नहीं मिलेगा, ये पेड कोर्सेज में होते हैं कंटेंट. वी डू इट फॉर फ्री. तो यस, थैंक यू एवरीवन. really good to know that आपकी मज़ा ज़्यादा आ रहा है. आई एम इंटरेस्टेड. फोर्थ वीक में वी आर ट्राइंग टू गो फॉर गेस्ट स्पीकर्स. आपको फ्लास्क वगैरह एक पूरा बैकएंड खड़ा करना, पूरा नहीं, अ पार्ट ऑफ बैकएंड खड़ा करना सिखाएंगे. विल आल्सो कवर मेकिंग GUIs with Python and everything. Also the fourth week, third day will be about what you can do with Python now that you have learned all these things. I don't guess कोई इतने extensive level पे Python सिखा रहा है, not even the paid courses. So yes, try to use it properly. और even then, अगर आप तुम लोगों को दोस्त वगैरह हैं who are interested in learning Python and properly being a good developer, हमारी वीडियोस आई रिकॉर्डेड हैं, दे आर ऑन द YouTube as well. आप वहाँ पे भी जाके वो शेयर कर सकते हैं उन लोगों को. I just want good guys, good Python developers out of Pakistan before I leave. अच्छी चीज़ें, अच्छे डेवलपर्स पैदा करके जाऊँ. भाई फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस शेयर करें पहले. I'll give you guys 5 minutes. आज ये डिस्कस कर लेते हैं. आज मेरा मूड नहीं हो रहा ज़्यादा पढ़ाने का. आई कैन शो यू सम प्रोजेक्ट्स आई हैव डन. आई डोंट थिंक मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा मेरे पास. तो नाउ द स्क्रीन शेयर में ढूंढता हूँ पहले, फिर आई लेट यू गाइस नो. अच्छा, बाय द वे आज हम लोग पहली वीडियो रिलीज कर रहे हैं अबाउट फाइवर 12 बजे तक. तो देखते हैं. ओके Make sure ओके. everyone is. ओह यू आर डन विद दैट. या पहली वीडियो डाल के देखते हैं. पीपल लव इट, इंशाल्लाह फिर और बनाएंगे. हाँ ठीक है. ऑन बेहतरीन. इनको समझाओ यार. मतलब आई स्टार्ट विद पाइथन एंड माय फर्स्ट गिग वाज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, माय फर्स्ट गिग वाज ऑन, नो नॉट माय फर्स्ट गिग, माय फर्स्ट ऑर्डर वाज ऑन Selenium. और इतना सिंपल सा था यार. मेरे पास भी नहीं है. इफ मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं दिखा देता हूँ. लेट मी गो अहेड एंड ग्रैब माय हार्ड ड्राइव. उस हार्ड ड्राइव में पड़ा होगा. अच्छा, सिंस तरुण इज नॉट हियर, तो द थिंग इज कि लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में पता नहीं है. अगर आपको पता चल जाए ना कि फ्रीलांसिंग इतनी बड़ी फील्ड है, आप एक नॉर्मल नौकरी से डबल ट्रिपल कमा सकते हैं, तो देयर इज नो गोइंग बैक. एक दफा आप फ्रीलांसर बन गए तो आप कंपेयर करने लगेंगे कि इज द जॉब राइट, जॉब करूं या मैं फ्रीलांसिंग करूं. तो मेक श्योर यू वॉच द सीरीज, और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोगों को सीखने को मिलेगा. क्योंकि देयर प्रैक्टिकल हैक्स. तो yeah. Let's hope it's there. एक दूसरी स्क्रिप्ट बता देता हूँ. यामीन भाई. अच्छा, इट्स गोइंग ऑन कंप्लीटेड. या रेहान, आई एम स्टिल इन माय 7th सेमेस्टर. अभी भी है एक सेमेस्टर इसके बाद भी, बट यस.
यार हसाम, एक सिंपल स्ट्रेटजी तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? पहला प्रोजेक्ट आया, यू गाइस डिड नॉट नेल इट, ठीक है, कोई मसला हो गया, देन व्हाट? दूसरा अकाउंट बनाओ। मुन्ना भाई का कौन सा वाला गाना था, ठीक वो दूसरे दिन ऐश्वर्या आ गई तो वो यार दूसरा अकाउंट बना के मस्त ऑन कर दो फिर। और तुम लोग ना खामखा डरते हो, आई नो, मतलब खामखा नहीं डर रहे, मैं भी डरता था किसी जमाने में, बट वंस यू जस्ट गो अहेड एट इट, बंदों को यार सिंपल सी चीजें भी गौरवों का क्या होता है कि भाई काम डेलीगेट करो, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। हमारा मसला क्या होता है यार, नहीं है ये भी काम खुद करेंगे, बच रहे क्या होंगे 5 रुपए, मेहनत कितनी करोगे 20 घंटे की, 5 रुपए बच रहे होंगे। बट द गोरों का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, डेलीगेट करो, जल्दी इसको आगे बढ़ा दो ताकि यू दे कैन कंसिडर बेटर स्टफ, ठीक है? तो यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, आप प्रॉपर अपना इसको डेलीगेट करके, अब डेलीगेट जो हो रहा है वो आप खुद लेके काम कर सकते हैं। वैसे अच्छे, उसकी थीम भी अच्छी है। आर्च नहीं यूज़ कर रहा, आई एम यूजिंग उबंटू बजी, बट यस आर्च पे काफ़ी मेरे को इसकी थीम बेहतरीन है। यू कैन यूज़ रेडिट आर यूनिक्स पॉन्ड, उस पर पूरी प्रॉपर तरीके की वो होती है, reddit.com से यहाँ से यूनिक्स। अच्छा, डोंट वरी, इट्स नॉट द रॉन्ग वेबसाइट और समथिंग। मैं ये भी कहना चाह रहा था कि अकाउंट बनाए तो एक्सपीरियंस के लिए बनाए, भले उस पर बुरे रिव्यूज आए। मेरे साथ हुआ था कि मुझे एक इसने मेरी 5 रेटिंग चल रही थी फाइवर पे, टोटल बिल्कुल 5 ना, 20 ऑर्डर बिल्कुल 5, एक आई और उन्होंने आके मुझे जो है 3 स्टार दे दिए और मैं 4.6 पे आ गया। और उसके बाद मैं 2 महीने के बाद ऑर्डर्स नहीं आए थे और मैं 4.6 पे अटका हुआ था, लेकिन हल्के हल्के ग्रेजुअली विद टाइम आई केम बैक टू 4.9। तो द थिंग इज कि एक्सपीरियंस के लिए करें भाई, कि भाई एक्सपीरियंस मिल रहा है, आप कभी भी दूसरा अकाउंट बना सकते हैं, तीसरा अकाउंट बना सकते हैं, दोस्त का बना सकते हैं। यही एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं आज आप लोगों को वीडियो समझ आती है नहीं आती। बाकी पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, अगर फ्रीलांसिंग के स्कोप की बात करते हैं, देयर लाइक अलियान चौधरी, हिशाम सरवर, बहुत बड़े बड़े, इनको भी आप लोग जाके देख सकते हैं। हमने एक सेशन होल्ड भी तो किया था, भावल, मी एंड यू, द वन विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हाँ यस यस, वो अपलोड नहीं हुआ था? वो अपलोड हुआ हुआ है, अपलोड हुआ हाँ, है। तो इनको लिंक दे दो। हाँ मैं लिंक दे देता हूँ। Yep, they should check it out. हमने भावल, मैंने और प्रतीक ने, we went over how Fiverr and how programming works and how electrical engineer guys can earn money from freelancing वगैरह। Okay, so ये टीजर वाली वीडियो तो तुम लोगों ने देखी ही होगी, मैं फिर से दिखा देता हूँ for the guys who do not know. Share screen on that. Allah Hafiz. So yes, अब this was right after I got my internship at Seed Code. अब सीन ये था कि थोड़ा ना मुझे ऑफ सीन लगता है जब पीपल गो अहेड एंड राइट रियली जेनरिक कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर ये कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखते हैं तो मैं भी एक स्क्रिप्ट बना देता हूँ थैंक्स अ लॉट बोलने की। सो दैट्स व्हाट द स्क्रिप्ट डज। मेरा अकाउंट खोलता है, इट लॉग्स इन द फेसबुक अकाउंट एंड जस्ट गोज ओवर द पोस्ट आई हैव गिवन इट, जो लिंक मैंने दी है इसको, और वो उस लिंक पे जाके जहाँ जहाँ पे जिस इस कमेंट पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ है वहाँ पे थैंक्स लॉट लिख के स्क्रॉल डाउन, उस रिप्लाई को क्लिक करके फिर स्क्रॉल डाउन कर दिया। अब ये फेसबुक का बॉट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नेट पिकिंग। फेसबुक आसानी से बॉट चलाने नहीं देता अपनी वेबसाइट पर, दैट्स व्हाई इट्स पर्टिकुलरली हार्ड टू वर्क ऑन फेसबुक। दिस वाज वन ऑफ माय स्क्रिप्ट, और मैं एक दूसरे स्क्रिप्ट बना देता हूँ जो मैं दिखाता हूँ, जो मुझे अभी अभी यामीन भाई ने भेजी है। सो यामीन भाई इज लाइक माय ऑफिस प्रोडिजी हो जाए, मतलब लेजेंड है ना हमारे ऑफिस के, प्रॉपर बंदा। सो ही फॉलो द सेम आइडियोलॉजी दैट आई डू, ऑटोमेट एवरीथिंग, ठीक है? उनको बस लेने काफ़ी प्यारा सा आता है। अब सीन ये है कि यू गाइस नो अबाउट द रीसेंट राइजन प्रोसेसर एंड द रीसेंट ग्राफिक कार्ड्स दैट एनवीडिया रिलीज्ड, 3000 सीरीज, RTX 3000 सीरीज। किसी को पता है कमेंट्स में? अतीक, तुम्हें पता है Ryzen 5000 सीरीज एंड NVIDIA 3000 सीरीज? बिल्कुल, मैं अभी भी आया है। हाँ, तो उसका मसला क्या है कि स्टॉक काफ़ी कम है। तो देयर इज दिस थिंग, यार कमल तुम ना सारी चीज़ें आउट कर दो ना, मैं कल परसों दिखाऊंगा। तो सो द न्यू Ryzen प्रोसेसर्स एंड ग्राफिक कार्ड्स, दे आर रियली आउट ऑफ स्टॉक, कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक है। रात को 3 या 3:30 बजे वो रीस्टॉक होते हैं अमेजोन पे,
5 मिनट में खत्म, ठीक है। सो आई होप तुम लोग पहुंच गए होगे कि वेयर दिस इज गोइंग। यामीन भाई रोट अ स्क्रिप्ट जो क्या करती है, इट्स वो अपने लैपटॉप पे रात को चला के सो गए, राइट, एंड वो बार बार रिफ्रेश करती है द रीस्टॉकिंग पेज, कहाँ गया रीस्टॉकिंग, और जाके खुद ब खुद ऑर्डर प्लेस कर देती है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, दिखाऊं तुम लोगों को? यस, स्कैल्पर ससाम। यमीन भाई लिटरली बिल्ड अ स्कैल्पर फॉर हिज ऑन पर्पस। उनको चाहिए था अपना वो ग्राफिक कार्ड चाहिए था। दिखा देता हूँ तुम लोगों को। One more thing I would like to add. मेरा एक दोस्त है, he's a trader, right? तो he trades on Nasdaq, और आप लोग जानते भी होंगे उसे। तो अभी हाँ। currently जो स्टॉक मार्केट चल रही है Nasdaq की, तो उसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि 1:30 बजे जो है ना, लोग खाना खाने जाते हैं, और खाना खाने के बाद जब वो लोग आते हैं ना, तो आने के बाद वो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब उस वक्त ना स्टॉक बाय करते हैं। तो ही बिल्ड अ रोबोट कि जैसे ही 1:30 बजे वो लोग बैठे हैं ट्रेडिंग करने, 15 मिनट के अंदर वो लोग सारे स्टॉक खरीद लेते हैं। तो वो खुद एनालाइज करता है बॉट, और उसके बाद प्राइस सेट कर दी है कि ओके। मैक्सिमम जितना भी जाए, मतलब हाँ मैक्सिमम हाँ 300 कर लिया, और उसके बाद 700 चला गया, और जब हाँ। रेट गिरने लगे तो 650 पे बेच दो। खुद ही बॉट बेच देता है। वो बहुत दिस बेटर है। इज रियल वर्ल्ड ट्रेडर बना दिया उसने। जो बात है मतलब, दिस इज समथिंग यू गाइस कैन डू ऑन योर, मतलब मैं तुम लोगों को एक हैकर स्क्रिप्ट्स राइटअप भेजूंगा, दैट्स रियली गुड। पहले ये देखो। आई थिंक दिख रहा है सब कुछ। हाँ हाँ, क्लियर है। सो जैसे राइजन 5 उन्होंने टेस्ट करने पे क्या किया था, अगर 2600X अवेलेबल है और बाय नाउ का बटन इज विजिबल एंड क्लिकेबल, खुद ब खुद बाय नाउ क्लिक करेगा, सारी इंफॉर्मेशन डाल के वीजा कार्ड की प्लेस ऑर्डर, डन हो गया विद इन 2 मिनट्स। आई वंडर कि अमेज़न पकड़ क्यों नहीं पाता उन लोगों को। नहीं, मैं खुद नहीं पकड़ता, उन्होंने ऑफ किया हुआ, रिकैप पे है ही नहीं उनका। अमेजिंग काम है, बिल्कुल सोच के पैसे दे। और यामीन भाई ने अपना ग्राफिक कार्ड ऑर्डर कर दिया इस चीज़ से, मतलब द गाय कैन सेल इट फॉर एटलीस्ट 20,000 30,000 मार्कअप इन पाकिस्तान नाउ इफ ही वांट्स टू सेल। लेकिन यामीन भाई क्लियर है, स्कैल्पर बिल्ड करूंगा तो अपने लिए बिल्ड करूंगा, अपने उसके लिए। तो द गाय इज बिल्डिंग इज ऑन पीसी H5 110 5600X मंगवा रहे हैं राइजन का, ये RTX 3080 मंगवा रहे हैं। बहुत हार्डकोर गेमर लगते हैं। जानिए मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा ना कभी। कुछ ब्रिंग हिम इन someday। पास पेपर वेब्स के बाद मैं सोच रहा था उनको, अच्छा अनस आई लुक इनटू इट, रियली इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने बताया कि पास पेपर्स डाउनलोड करते हैं खुद को जाके, एग्जैक्टली 2000 पेपर्स को जाके खुद बंदा डाउनलोड करेगा। होपफुली इन 2000 पेपर्स पे वो भी करना, तो डाउनलोड करके तो कोई भी रख सकता है। वेबसाइट लॉगिन मांगना शुरू हो गया था, इंटरेस्टिंग। मुझे वो इंस्टेंस बताना जहाँ पे वेबसाइट वो मांग रहा है, लॉगिन मांग रहा है। I don't think it should be too much of a problem of scrapping the web pages. सिर्फ पेजेस अगर इनकोग्निटो में खोलना चाहो तो even then I can log in, तुम हटा भी सकते हो, div ही होगा most likely ऊपर। Let's hope कि वो removable अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, just submit whatever you have right now। ठीक है, एंड करते हैं यार, 10:32 हो गया। आज स्टार्ट भी जल्दी किया था, थोड़ा नींद भी आ रही है मुझे। गाइस, सो क्वेश्चन अबाउट टुडेज सेशन। कल हम इनपुट वगैरह लेके एक प्रॉपर बॉट बनाएंगे शुरू से फ्रॉम द स्क्रैच, जो नॉट ओनली ये देखेगा कि करंटली क्या वेब पेज पे ये चीज़ एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं है, लॉगिन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना एंड इंटरेक्टिंग विद द एलिमेंट्स इन अ वे नॉर्मल ह्यूमन वर्ड, ताकि कोई बंदा डिटेक्ट ना कर पाए तुम लोगों को एज अ बॉट यूजुअली करता है। फेसबुक डजंट अलाउ स्क्रैपिंग, ऑफ कोर्स डजंट यार, मतलब फेसबुक का अपना प्रोडक्ट क्या है, डेटा बेचना। why would it allow other people to have access to the data it monetizes, मतलब मैं क्यों करूँगा? And that's why Facebook does not allow web scrapping। Is this Islamic Republic of Pakistan? I think it is Islamic Republic of Pakistan, dude।
हाँ, ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग बॉट प्रोड्यूस करो, उसको पहले एनालाइज करना पड़ेगा 1-2 घंटे बैठ के कि किस तरीके से पाकिस्तान PSX वगैरह काम करती है। We do not encourage any sort of stock trading क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बैन है। Yes, यस, no encourage. वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, करो बट वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग। चलिए ठीक है, आई गेस कोई किसी का क्वेश्चन नहीं, आज समझ आ गया था सबको। आई केप्ट इट शॉर्ट कि आज समझ आ गया था, आज है सबको सही तरह से। लेट्स एंड द सेशन आई गेस। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ गाइस, वेयर मास्क, स्टे सेफ।